السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ کھانے کے بعد غسل کرنے سے انسان کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے خون کی روانی بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ انار کا جوس پیتے ہیں تو آپ کی جلد چند دنوں میں پاک جوان نظر آئے گی۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیز کے استعمال سے پیٹ بھرنے لگتا ہے۔ جو لوگ سورج نکلنے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں ان کا چہرہ خوش نما اور تر و تازہ رہتا ہے۔ رات کے وقت کیلا کھانا کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے، جن میں نزلہ، زکام اور کھانسی بھی شامل ہے۔ جن لوگوں کی یادداشت کمزور ہو وہ کھانے میں زیادہ ہلدی استعمال کیا کریں۔ جو لوگ دن میں 12 گلاس پانی پیتے ہیں ان کی جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ بیسن کی روٹی بنا کر کھانے سے چہرہ نکھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ برے شیطانی خواب آنے پر اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں۔ زکام سے بچنا ہے تو روزانہ پاؤں اچھی طرح دھو لیں۔ مونگ پھلی کب کھائی جاتی ہے؟ خون کی نالیوں کے امراض میں کھائی جاتی ہے۔ گائے کی چربی کھانے سے موشن نہیں لگیں گے۔ نیند نہ آ رہی ہو تو پانی کے اندر زیرے کو جوش دے کر پی لو اور فوری نیند آ جائے گی۔ پروٹین حاصل کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے کھانے سے گھنٹہ قبل مونگ پھلی کھائی جائے۔ جسم میں خون کی کمی کی چند علامات: بے ترتیب دل کی دھڑکنیں، سینے کا درد، ٹھنڈے ہاتھ ٹانگوں میں درد رہنا اور نیند نہ آنا۔ زکام سے بچنا ہے تو روزانہ پاؤں اچھی طرح دھو لیں۔ مونگ پھلی کب کھائی جاتی ہے؟ خون کی نالیوں کے امراض میں کھائی جاتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کھجور کھانے سے دل کے امراض دور ہو سکتے ہیں۔ چند کھجوروں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھا لیں۔ کاجو کے 2 دانے منہ میں رکھ کر چبانے سے حافظہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں تک کوئی چیز نہیں بھولے گی۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولنے چاہیے۔ گرم کھانا کھانے سے گریز کریں۔ معدے کو ہضم کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوان کرنے کے لیے ادرک کے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا کام کرتے وقت کمر میں درد رہتا ہے تو یہ ہارٹ اٹیک کی علامت ہو سکتی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کریں۔ ہارٹ اٹیک سے پہلے خون کی روانی متاثر ہوتی ہے، جس سے سانس لینے کا نظام بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ زیادہ اونچا تکیہ لگا کر سونا اور کمر کو جھکا کر بیٹھنے اٹھنے سے گریز کیا کریں۔ فرعون کی بیوی نے خود کو تب بدلا
जब वो खुदाई के दावे करने वाले के महल में रहती थी। अगर अनार को इसके छिलके समेत खा लिया जाए तो ये मैदे को तंदुरुस्त रखता है। अगर सुबह हाथ मुंह धोते वक्त पानी में चंद कतरे लेमू के डाल दें तो उससे चेहरा खूबसूरत रहेगा। खुशबू दिमाग की कुव्वत को बढ़ाती है और नज़र की कमज़ोरी को दूर करती है। अगर जहरीला कीड़ा काट ले जाए तो मुतासरा जगह पर हल्दी लगा दो। रात को सोने से कबल आंखों में सुरमा डालना सुन्नत है। जिन अफराद को खाना खाने के बाद जलन महसूस हो वो पपीता ही खाया करे। बदबूदार और गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो और उन लोगों के दरमियान नहीं बैठना चाहिए जो सोने से कबल बातें किया करें। गरम खाने को फूंक मार से ठंडा मत करो। अंधेरे में मत खाओ। खाने को सूंघा ना करो। खाने को सूंघना बदतज़ीबी होती है। लकड़ी के कोयले से दांत न साफ करो। अपने दांतों से सख्त चीज़ें मत तोड़ा करो। हमेशा बैठकर कपड़े तब्दील किया करो। जिस घर में नीम का दरख्त मौजूद होता है उस घर में ला इलाज बीमारियां नहीं आती। कब्ज़ की प्रॉब्लम जिन जिन लोगों को रहती है वो बड़ा गोश्त बिल्कुल तुर्क कर दें। जामन खाने से पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म कर देते हैं। दांतों पर लेमू का रस लगाने से दांत मजबूत और साफ हो जाते हैं। गर्म पानी से चेहरे को धो लेने से चेहरे की जल्द बूढ़ी हो जाती है। अजवा खजूर पेट और जिगर के कैंसर के लिए बेहद मुफीद साबित होती है। गुड़ का शरबत बनाकर पीने से इंसान कभी मोटा नहीं होगा। जो इंसान जवानी में शादी कर लेता है तो शैतान चीख उठता है, हाय अफसोस उसने मुझसे अपना दीन बचा लिया। रोज़ाना गंदम की रोटी खाने से मैदा काफ़ी मजबूत रहता है। जब तौबा बार बार टूट जाए तो तौबा टूटने की वजह देखनी चाहिए और एक बार एक नए अज़म के साथ तौबा करके ये सोचना चाहिए अल्लाह की रहमत के गज़ब पर गालिब है, मगर तौबा की उम्मीद गुनाह नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कपूर सरसों के तेल में मिलाकर बालों में लगाएं। थोड़ा जुएं और लीखियों का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सूरत यासीन 3 मरतबा 11 दिन तक पढ़ें और फिर अल्लाह ताला से दुआ करें। जहां आप चाहेंगे वहां आपकी शादी हो जाएगी। मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के लिए अदरक बेहद मुफीद साबित होती है। नमाज पढ़ने के बाद अपने हाथों को चेहरे पर फेर लिया करें। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। काले कपड़े पहनने से इंसान के जिस्म की हरकत में इजाफा होता है। हर वक्त टाइट कपड़े पहनने वाले बंदे को कब्ज़ की शिकायत रहती है और ख़त्म ही नहीं होती। इससे आपके चेहरे पर नूर रहेगा और चेहरे पर कील मुहासे नुमाइयाँ नहीं होंगे। जिनके चेहरे पर छाइयाँ पड़ जाएं वो दूध में बादाम और खजूर डालकर पी ले। आलू बुखारा खा लेने से आँखों के नीचे हल्के नहीं बढ़ेंगे। नारियल और चिकंदर खा लेने से हड्डियों के जोड़ मजबूत रहते हैं। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी में प्याज कुचलकर चीनी मिला लें। सुबह शाम 2 से 3 चम्मच ये अमेज़ पिएं। हम बिस्तरी करने से 10 मिनट पहले
अपने नफ्स पर यह चीज़ लगा लो, मक्खन में इमली का रस और लसूड़े का रस मिलाकर नफ्स पर लैप कर दें। नफ्स मोटा और लंबा हो जाएगा। घर की चटाई अस्पताल के बेड से बेहतरीन है। रिज़्क की तंगी सांस की तंगी से बेहतर है। हमेशा अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। रोटी खाने से कबल लेमू का कतरा चख लो, बदहज़मी का मसला नहीं होगा। अनार को अंदरूनी छिलके समेत खा लेने से मैदा मजबूत हो जाता है। हरीड़ के 2 दाने सुबह शाम खाएं, दूध के हमरा ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ये एक ख़ानदानी राज है। इससे मैदा भी तंदुरुस्त रहता है, बाल भी कभी सफ़ेद नहीं होंगे। छुआरे खाने से कमर का दर्द दूर हो जाता है। अदरक का रस और घी मिलाकर पीने से कमर के दर्द दूर हो जाते हैं। मुल्तानी मिट्टी घर में रखो, मकड़ी जाला नहीं बनाएगी। हरी सब्जियां खाने से डिप्रेशन के मर्ज में 50% तक कमी लाई जा सकती है। काले जीरे को कुचलकर फिर गर्म पानी में शामिल करके पी लें। इंशाल्लाह गैस की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मुल्तानी मिट्टी गले पर लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होंगे। मुल्तानी मिट्टी बदन पर लगाकर सो जाओ, मच्छर नहीं काटेंगे। मुल्तानी मिट्टी चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ नहीं बढ़ती। खाने के बाद पानी इस्तेमाल न करने से जवानी देर तक कायम रहेगी। अगर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर साबुन लगा लो, फौरी आराम आ जाएगा। ज़्यादा सोचने से खुशियों का कत्ल होता है। खौफ की वजह से हौसले का कत्ल होता है। झूठ बोलने से इत्मीनान का कत्ल होता है। शक करने से खुशियों का कत्ल होता है।